Hi everyone, I hope that you are doing well. This is me, Syed Shujatullah. Today we are going to discuss the very important Industry and Infrastructure chapter of Economic Survey 2020-2021. Okay, so there won't be any other parts on this particular chapter because I am doing in one full video. Okay, that will anyhow help all of you. So many students send me messages and mails saying that sir, please record that chapters in one full fledged video so that they can able to get the information at one place. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज ये वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? What we are going to discuss today in this video, let us see now. चलो, तो ये तो मैं बोल दिया, फुल चैप्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये वीडियो में होगा. पैंडेमिक एंड रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. You know that pandemic था, कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हुआ. All the three sectors of economy has shown what decreased growth rates. और GDP भी कम हुआ था. And you know that after certain period of lockdown, we started what unlocking process. Unlock 1, unlock 2, like that we started. Okay. जब unlock phase start हुआ, okay, when the unlock phase started, so government has given some stimulus. Government has given some monetary stimulus. Monetary ही देती government. Okay, sometimes other non-monetary stimulus will also be given. Non-monetary stimulus you can include what tax कम करना. Tax कम करने को non-monetary stimulus बोलते हैं. Okay, transaction cost कम करना non-monetary बोलते हैं. Okay, monetary stimulus means a बड़ा relief package देना. So much crore of fund is created, and in this fund the small businessmen will be given loans. तो ये monetary benefits है. Incentives देना, subsidies देना, ये monetary benefits है. नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक टैक्स डिक्रीज कर देना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर देना, ये नॉन मॉनेटरी होते हैं. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in order to revive the industrial sector has brought lot of reforms. Okay, and the reforms were in the form of what? Atmanirbhar 1.0, 2.0, 3.0. तो 1.0 में थोड़े रिफॉर्म्स लाए थे, 2.0 में more reforms came into existence, 3.0 में again more reforms came into existence, means measures taken. Okay, few measures. So step by steps, lot of measures were taken in the form of 1.0, 2.0, 3.0 of Atmanirbhar Abhiyan. Okay, to revive what? To revive our industrial sector. We are also going to discuss about the importance of industrial sector, trends in the industrial sector, what is the 8 core industries, what do you mean by index of industrial production, which we have already discussed in our last video too. Gross capital formation का मतलब क्या है, and how it is with respect to industrial sector over a period of time. Okay, कितना पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर को गया, credit disbursement to industrial sector, performance of central public sector enterprises. As you all know, आप सबको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? देयर इज ए coexistence of both private player and public. Public here means government, private here means you, me, hum, tum, so. Okay, so public here means government, private here means you, me, etc. So just like Airtel is there, it is you, me as. Okay, like Airtel is there, which is a private owned company, and you are having what? BSNL. You are having here SpiceJet, here you are having what? Air India. है कि नहीं? So mixed economy का मतलब क्या है? Coexistence of public and private sector. So we are going to analyze the performance of central public sector enterprises. Why we are saying central? It is very common that government of India, central government has also got their own companies. State governments के खुद के भी companies होते हैं. Like in our Telangana, in my Telangana, we are having Vijaya Dairy, TSRTC, TS State Finance Corporation. Okay, ये पूरे हमारे हैं. State government establish करी सो companies है. Okay, यहाँ पे निजाम शुगर फैक्ट्री भी है, like that. सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, यू ऑल नो दैट वेरी वेल, यू नो अबाउट देम. भेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ECIL है, मिधानी है, ओके, ONGC है, NTPC है, NMDC है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है. दीज आर ऑल व्हाट? इंडस्ट्रीज, कंपनीज ऑफ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं. So we are going to, as because ये Indian economic survey है, तो we are going to discuss about the performance of okay central public sector enterprises. Not only that, we will also see what is the corporate sector is doing. Corporate means private sector, private persons
and their company's performance. उनका क्या है? Okay. And there was some data with regard to ease of doing business. Ease of doing business का मतलब है how easy it is to do business in our country. Okay, how easy it is to do business in our country. Let's suppose you are having a home. This part of the home you are living and this part you want to give it for rent. ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिए 3 BHK फ्लैट फॉर रेंट, no drinking, no alcohol, no dancing, no DJ, no female friends. Okay, no female friends like that. Okay, no non-veg. So you will hardly get people. Okay, for rent means आपको customers inquiries बहुत कम आते. Suppose if you put the board as all these are available, so a lot of people will come, right or wrong, for rent. Why? Because it is very restrictions are more here. It is what there are restrictions are, all of them are what relaxed restrictions are there. So you will prefer this one, not this one. Okay, though you may not do many of this, but still you will find at least a kind of mental relaxation will be there that you can do anything. So many inquiries will come for this particular advertisement, not for this. In the same way, India, suppose यहाँ पे बहुत सारे taxes है, बहुत सारे regulations है, बहुत सारे rules है, बहुत सारे acts है, central government के acts है, state government के acts है, अब इतना सारा complexity है. Okay, acts में अलग अलग provisions है, the provisions are not pro to the corporate sector companies. आप आओगे नहीं, अरे भाई यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना, यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता, इतने टैक्सेस भरना पड़ता, इतने जगह से परमिशन लेना पड़ता, अप्रूवल लेना पड़ता, ये सब किरकिरी रहती. ठीक है, अगर समझो सब चीज अच्छी हो गई, okay, so investment will come or not. Yes, so that is called as ease of doing business. One such important part also I can say you that suppose अगर ad के through any policy has come, if that is implemented, then any company will like to come and invest in India. But अगर बीजेपी गवर्नमेंट उनका ही एक ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से if they made any rules and regulations, what will happen after 5 years if this government changes, some other government may replace this one or not. Okay, so आप एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया में, 2 साल में एक रूल्स से, फिर 5 साल में फिर और एक रूल्स चेंज हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती, द मोमेंट द मेजॉरिटी नंबर्स आर नॉट देयर, okay, then the government will fall, right? So in this scenario, who will come and invest? Not possible. So political stability and the way of governance, if it is through acts, are one of the important ingredients of what is of doing business. Okay, इसलिए एक्ट के थ्रू अगर लेके आए ना कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत भरोसा रहता भाई, एक्ट के थ्रू लेके आए तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन गेट द जस्टिस. Okay, so that is how they feel and they come to our country for investment. So let us also discuss what is there in the ease of doing business also in a little bit. चलो ये पूरे अपन 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. Let us see this pandemic. ये इतना beautifully written है. Any students who is preparing for the mains examination or who is very much sure about the prelims that he is going to clear, please take down all of these points, or else you can WhatsApp me. I will do that. ये पूरा जो भी PDF में पढ़ा रहा हूँ, I will give you that to the particular person. So you can do that, or you can mail me any of the channel you can use. I will send you this document. Okay. अगर question अगर आया, what are the measures that could be taken by the government of India in order to revive, in order to revamp industrial sector, suggest some measures, okay, so that industrial sector could be revived, industrial sector could be renewed or revamped. Okay, what are the challenges, what are the steps government of India has to take in order to remove the obstacles or bottlenecks in the industrial sector. Any such question comes where you are asked to suggest some measures how to do better in industrial sector, you can write all these points happily. Bas likh do. Okay. Reducing the transaction cost. Transaction cost is nothing but the cost that incurs when you exchange goods. So like Hyderabad to Dehradun, I sold a car to a person in Dehradun. So she will give me what, or he will give me what money, right? So transaction हुआ. बीच में क्या हुआ? Transaction means
exchange हो जाना means something has to be exchanged between two people. Okay, that is called as transaction. In this transaction, suppose हैदराबाद से मैं देहरादून जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे इंटरस्टेट टैक्स भी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगेगा. ओके, फिर वहाँ पे अगर एंट्री टैक्स भी हुआ तो वो भी लगेगा. सो मेरी कार की वैल्यू वन करोड़ रुपीज है एंड ऑल दिस इंक्लूड्स लाइक 1,20,000 ऐसा हो गया. This 20,000 is my transaction cost. So government took some measures in order to decrease what? Transaction costs. In order to decrease transaction cost. So ये जो भी ऊपर के जो भी taxes है, जो भी collections है, government removed it. Okay, in order to revive the industrial sector. MSME के लिए भी कुछ है. Supporting MSME, micro, small and medium enterprises. We will have a detailed discussion on it. Don't worry. Competition enhance करना है. Enhancing competition. Okay. Enhancing competition is one of the major ingredient where the consumers will get satisfied. Where the consumers will get satisfied. Okay. Enhancing competition. And this consumer satisfaction at the optimum level will be in a market which is perfectly competitive. Perfectly competitive market means a area where there is no restrictions on occupation, no restrictions on ownership of resources, just like capitalistic model. Okay, no government much interference in the occupation. So any caste person can open any business of his choice, any class person can open any business of his choice. Class means poor, middle class, upper class, etc. Okay, then caste means SC, ST, etc. When there are no such restrictions are there, anybody can produce any product of their choice. What will happen? Lot of products will come into the market and consumer will get choice. Consumer choice will be widened. And he will pick up the best product according to the features, according to his taste, according to his preferences, according to his customs. So in this way consumer satisfaction will be at the optimum level. Okay, इसका और थोड़ा discussion हो सकता, but I am not going into that. I just wanted to say you that why this enhancing competition became a part of the industrial sector. Okay, so government का जो भी relief package था, it includes employment creation. Okay, and securing sustenance through आत्मनिर्भर अभियान. So pandemic तो था इंडिया में, March 25th से लॉकडाउन था. And you know that because of pandemic, because of COVID-19, all the sectors of economy, agriculture, industry, service, all have shown what reduced growth rates. Okay, GDP भी कम हुआ था. Now government has to revive all the sectors or not? Government has to stimulate all the sectors or not? Yes, government took lot of reforms in agriculture sector. Government does took lot of reforms in industrial sector. And what are the reforms in the industrial sector government took? All these steps were taken by the government of India in order to stimulate or in order to give a push to industrial sector or to increase its production. Okay, याद रखिए आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में 3 सब सेक्टर्स होते हैं. एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो कंस्ट्रक्शन है और एक तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, लाइक दैट. तो ये 3 सब सेक्टर्स को all these steps were taken in order to revive the growth rate. Okay. And India में, as you all know that if any change government want to bring in any of the sector, generally they follow what? Monetary stimulus ही मिलता, पैसे ही देते, monetary stimulus will be given. That's why if you have learned your planning chapter, you may also come across financial planning. India में financial planning होती है. What kind of planning India has? Financial planning. Financial planning is a type of planning where money is allocated. In order to achieve what? Objectives. अगर 10,000 किलोमीटर की रोड वेज क्रिएट करना है, गवर्नमेंट विल से दैट ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम 500 करोड़ रुपए दिए. We have given 500 crore rupees under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in order to create 10,000 kilometer of road length. So you see, to achieve this objective, government has allocated what? Money. This kind of planning is called as financial planning. So any change, any objective, any goal, if the government want to achieve, they will generally allocate money. So if government want to do all this stuff, of course money would have been disbursed.
or money would have been allocated. You are very right. That's why to achieve all of these objectives, government has given a package of 29.87 lakh crores. Okay, which is so much huge that it constitute around 15% of GDP. उतना सारा पैसा इंडस्ट्री सेक्टर को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड. ठीक है, आई होप दैट यू गॉट इट. इफ यू डिड नॉट गेट इट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी. यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. आई एम मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ठीक है, चलो. आत्मनिर्भर अभियान 1.0 और यू कैन से 1.0 इंडस्ट्री के लिए. तो पहला है रिलीफ एंड क्रेडिट सपोर्ट टू MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, टू फाइट अगेंस्ट कोविड. सो ये छोटे छोटे जो भी कंपनीज है, ये कंपनीज लॉकडाउन में रुक गए, इनका प्रोडक्शन होना कम हो गया, इनका कॉस्ट जो कि आप देखो भाई, अब मैं मेरा एक मॉल है. ठीक है, लॉकडाउन हो गया, मॉल में कोई आ रहे नहीं, शॉप कोई हो रहे नहीं, तो मेरा मॉल का जो रेंट है तो देना ही है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही है, मेरे स्टाफ के पैसे देना ही है. तो मैं डेट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? ओके, आई विल गो इन एनी हाउ डेट. ओके, अगर गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प मी, व्हाट विल हैपन? आई हैव टू वाइंड अप दिस यूनिट और नॉट. मुझे ये बंद कर देना पड़ता. सो मुझे चाहिए गवर्नमेंट से रिलीफ चाहिए. मुझे क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए. और बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो उनके लिए लोन चाहिए. क्या चाहिए? लोन चाहिए. ओके, ये तो देखना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSME. लोन्स मिल जाएंगे आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, पान डब्बा डालने के लिए, सलून डालने के लिए, किराना शॉप डालने के लिए, हार्डवेयर शॉप डालने के लिए आपको लोन मिल जाएगा. नॉट ओनली दैट, MSME कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे तो भी आपको लोन मिल जाएगा. फॉर दैट पर्पज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलोकेटेड 3 लाख करोड़ रुपीस, और वो भी कोलेटरल फ्री है. बोलते आपको घर के पेपर्स रखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू पुट गोल्ड, यू डोंट हैव टू पुट एनी बॉन्ड, यू डोंट हैव टू पुट एनी सिक्योरिटी. फॉर दैट आपको लोन दे देंगे. ओके, सो दी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. इमरजेंसी है भाई, अब बिजनेस डूबने आ रहा तो इमरजेंसी है, तो अब जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना लोन. भाई मेरे पास इमरजेंसी है, मेरे पास पैसे नहीं है, सो अंडर दिस स्कीम यू विल बी सपोर्टेड. Okay, so emergency credit line guarantee scheme has been formulated as a relief measure to MSME by providing them additional funding up to 3 lakh crore in the form of fully guaranteed emergency credit line. ये सब important नहीं है, बस ये याद रखो. 3 लाख करोड़ दे दिए MSME को रिलीफ करने के लिए और बिजनेसेस के लिए लोन्स के लिए, वो भी कोलेटरल फ्री है. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, डोंट रीड इट ऑल. ओके, एंड नो गारंटी फी. ओके, एंड नो फ्रेश कोलेटरल इज रिक्वायर्ड. तो ये सब जरूरत नहीं है. ये छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, गारंटी फी. ओके, प्रोसेसिंग फी, ये सब रहते हैं ना. आप लोन ले रहे तो आप कभी लोन तो ले लो. ओके, तो आपको मालूम होता लोन आप लोगे तो वो लोग चार्ज करेंगे कि 3,000-4,000 रुपए. व्हेन वी आस्क व्हाई डिड यू टेक 4,000 फ्रॉम अस, दे विल से सर ये प्रोसेसिंग फीस है, ये प्रोसेसिंग फीस है. ट्रांजैक्शन हो रहा, हम उनको लोन अप्लाई करे तो वो अपने को लोन दे रहे, तो ट्रांजैक्शन हो गया. सो दे आर चार्जिंग अस सम प्रोसेसिंग फी. यही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ओके, तो यही रिड्यूस करे. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड. 20,000 crores, okay, was given for subordinate debt for stressed MSME, subordinate debt. Okay, so ये subordinate debt आप comment section में लिखिए, what does it mean? So I will correct it tomorrow. तो थोड़ा तो खुद से काम करिए. Okay, what is the meaning of subordinate debt? If you know this one, no, then you know the total paragraph. Otherwise, you will not know. So I will wait for you that whether you will do some exercise in your home or not. कुछ ना कुछ interaction रखेंगे भाई. Okay. 50,000 crores equity infusion through MSME funds of funds. Okay. और एक फंड क्रिएट करे जिसमें 10,000 करोड़ रुपए रखे. ओके, जस्ट एक ट्रेजरी अपने घर में अलमीरा में अपन एक 5 लाख रुपए रखे, एक काम के लिए, शादी के लिए या फंक्शन के लिए 5 लाख रुपए रखे ना. डैडी क्या करे, ये भाई ये शादी के लिए, ये इनके लिए रखते हैं ना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉर्पस. कॉर्पस मींस इतना अमाउंट ये चीज के लिए यूज करना है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस. फंड ऑफ फंड फॉर MSME. ओके, ऑलरेडी एक फंड के ऊपर और एक फंड, ओके, पैसों के ऊपर एक fund of fund was created of the corpus 10,000 crores that will provide equity funding support for MSME. Equity funding support for MSME. So MSME
कौन सी भी कंपनी रहो, अगर वो उसके अपने शेयर्स बेच रही तो वो फंड से वो शेयर ले लेगी गवर्नमेंट एंड दे विल गिव फंड, मनी देगी, मनी विल बी गिवन जस्ट लाइक शेयर मार्केट टाइप स्टफ. Okay, the funds shall be operated through a mother and a few daughter funds. Okay, it will provide equity funding for viable means जो भी profitable है उनके लिए पैसे मिल सकते हैं, fund of funds. Okay, 50,000 crore rupees were set aside. Okay, and government in order to raise money, in order to help the MSME to raise money, government has also helping them to get listed on what stock exchanges. तो स्टॉक एक्सचेंज पे वो जो कंपनी के नाम जा रहे हैं ना, तो उसको लिस्टिंग बोलते हैं कि हमारा भी लिस्ट में नाम है. ओके, सो गवर्नमेंट हेल्प करती है. देखो अब ये याद रखो कि ये फंड ऑफ फंड फॉर व्हाट पर्पस, ये एमएसएमई के लिए है. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग होती है. MSME कैन रेज देयर मनी बाय इशूइंग व्हाट शेयर्स. कितना पैसा इसमें दिए, 10,000 crores विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 crores. एंड किसको मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है? नो, ओनली फॉर वायबल MSMEs, दोज MSMEs which are profitable, they will only get. So those who don't know what is MSME, MSME means micro, small and medium enterprises. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, छोटे थोड़े बड़े कंपनीज, ज्यादा बड़े कंपनीज, उतना ही. ओके, and a new definition of MSME was also introduced by the government. We'll come to that in the next later slides. Okay, lower threshold in the MSME definition have created a fear among the MSME of graduating out of benefits. Hence government has revised the definition of MSME by raising the investment limit. अभी क्या हो रहा था, जनरली आप ये बात याद रख लो, माइक्रो बोल तो सबसे छोटा कंपनी, स्मॉल बोल तो थोड़ा बड़ा, मीडियम बोल तो और थोड़ा बड़ा, लार्ज बोल तो और थोड़ा बड़ा. सर ये छोटा बड़ा हाउ यू आर सेइंग मीन्स, ओके, यू आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट. अगर आई विल कम, चलो वही देख लेंगे, आपको देखे तो समझ में आ जाता. देखो, डेफिनेशन ऑफ MSME, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन है, ये न्यू क्लासिफिकेशन है. अर्लियर क्लासिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, लेट अस सी न्यू क्लासिफिकेशन. माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोलते हैं, माइक्रो कंपनी किसको बोलते हैं? ओके, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 crore है, ओके, और टर्नओवर लेस देन 5 crores है. टर्नओवर बोलते पैसा जाना पैसा आना, पैसा जाना पैसा आना, ये पूरा मिला के टर्नओवर कितना है, 5 crore. ओके, सपोज आप एक जिलेबी शॉप ओपन करें, ओके, तो आप इसमें पैसे 1 लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख आए, 1 लाख लगाए 2 लाख आए, ये पूरा मिला के पैसा कितना हुआ, 3 लाख. दिस इज कॉल्ड एज टर्नओवर. जितना गया कितना आया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्नओवर. अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 crore से कम है, देन आपकी कुछ भी यूनिट रहो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहो, ये पेन टैप की, ये प्रोड्यूस करने की, और मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने की, या तो बड़ी रहती कैसे भी. ओके, व्हाट एल्स आई एम हैविंग हियर, अगर आपकी ये भी कंपनी रहो चल जाएगा. अगर आपकी ये जो है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ओके, जैसे ये जो टेप है, ओके, मेजरिंग, सो व्हाटएवर इट इज. ओके, कुछ भी रहो, आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और 5 crore से कम टर्नओवर है, तो आपकी यूनिट को वी कॉल इट एज माइक्रो. स्मॉल का बस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ज्यादा है और कुछ भी, 10 crore 50 crore, मीडियम का 20 crore 100 crore, दैट्स ऑल. ओके, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज और इंटरप्राइजेस, बोलो आप फैक्ट्री, बोलो आप यूनिट, बोलो आप कुछ भी बोल लो, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट योर इन्वेस्टमेंट, नथिंग मोर देन दैट. आई थिंक नाउ आपको समझ में आ गया. तो अभी क्या हो रहा था, यू नो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग. सो गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम में से माइक्रो के लिए बहुत ज्यादा
बेनिफिट्स लेके आती थी, बिकॉज छोटे कंपनी से छोटे छोटे बिजनेसमैन ओपन करे सो है, तो इनको लॉस नहीं होना, नहीं तो फिर ये लोग बहुत गरीब हो जाते। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स माइक्रो को ज़्यादा रहते थे, स्मॉल को मीडियम को कम कम होते जाते थे। ओके, तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते थे, बोलो माइक्रो कैटेगरी में ही रहेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर माइक्रो कैटेगरी में रहे तो अपने को बेनिफिट ज़्यादा आते, अपने को टैक्स रिबेट्स आते, अपने को ये ड्यूटी नहीं लगती, वो ड्यूटी नहीं लगती, अपने को बहुत सारा पैसा बच जाता बोल के दे डोंट वांट टू अपग्रेड देयर स्टेटस. So they always used to be in what smaller categories so that they will reap the benefits of government, okay, in the form of subsidies and incentives. Okay, तो इस वजह से क्या हो रहा बोलते हो, there is उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को रेज नहीं कर रहे, यू सी दे आर नॉट रेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। ओके, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते ही वो दूसरी कैटेगरी में चल जाते हैं, व्हेन दे गो टू द अनदर कैटेगरी व्हाट विल हैपन, ओके, अगेन दे विल नॉट गेट द बेनिफिट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई, सो गवर्नमेंट क्या करी भाई, वो लिमिट बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा के इनके दिल में जो फियर था बेनिफिट्स नहीं आते, वो लिमिट बढ़ाने से क्या हो गया, दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। एंड यू नो दैट इन्वेस्टमेंट जब भी इंक्रीज होता ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता, वेरी कॉमन सेंस। ओके, अगर मैं एक जीरोक्स मशीन लिया 1 लाख की, ओके, और 1 लाख इन्वेस्ट करके और एक जीरोक्स मशीन लिया, तो एक जीरोक्स मशीन से 1000 फोटो कॉपी कर रहा हूँ, तो और एक जीरोक्स मशीन से और 1000 कर दूं नहीं कर दूं, तो एक जीरोक्स मशीन में एक आदमी काम कर रहा और एक जीरोक्स मशीन में और एक आदमी काम कर रहा, तो यू कैन सी दैट व्हेन आई इंक्रीज माय इन्वेस्टमेंट एंड बाई ए अनदर जीरोक्स मशीन, द नंबर ऑफ photocopy is getting increased in the same way, and also एक नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया। अब मशीन चलाने के लिए और एक बंदा तो चाहिए ना, एक लैपटॉप पे एक ही जना काम कर सकता ना, 2 लोग का काम नहीं कर सकते, एक मशीन पे भी एक ही काम कर सकता, 2 लोग काम नहीं कर सकते। ऐसा ही सोचना, ओके, ऐसा नहीं बोलना कि सर एक शाम में करता एक रात में करता, फिर वैसा भी समझा सकते, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, दिन भर तो काम नहीं कर सकते ना। ओके, सी मैं बोल ही दूंगा फिर आपको, जीरोक्स मशीन है, आप 1000 फोटो कॉपीज कर रहे सर हो, तो अपने को 8 घंटे का काम करता, 8 बजे लेबर आता, 5 बजे चल जाता, ऑप्टिमम कैपेसिटी टू डू फोटो कॉपिंग इज 1000 कॉपीज ही कैन डू, 5 बजे के बाद चल जाता। हाउ कैन यू मेक 2000, हाउ कैन यू मेक 2000, 5 बजे से लेके फिर सुबह के 8 बजे तक काम करो, तो क्या ये बंदा इतना काम कर सकता? नहीं कर सकता, उसकी होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो आपको ये टाइम में भी आपको वन और एक नया पर्सन लगाना पड़ता ना, इधर आप इंक्रीज करो लेबर और आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट आप एसेट ही लेके आओ, बोथ आर सेम। ओके, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, ये तो बहुत अच्छा प्रोविजन है, आई लाइक दैट। जनरल फाइनेंशियल रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट अमेंडेड। ओके, अभी जो रोड डालना है या इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन लगाना है या अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप्स लगाना है, सो इसके टेंडर्स आते हैं, गवर्नमेंट इशू टेंडर्स। गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट अवर डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल फॉरेन के टेंडर्स को अप टू 200 करोड़ डिसअलाउ करी। अगर समझो एक 100 किलोमीटर की अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन डालना है, सो गवर्नमेंट क्या करी, हिंदू न्यूज़पेपर में ऐड दी। ओके, ये इसका गवर्नमेंट बोल दी कि 100 किलोमीटर की अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन डालना है, गवर्नमेंट बोल दी 200 करोड़ से ज्यादा हम नहीं दे सकते, और जो कम से कम बिड करता उसको हम टेंडर दे देंगे। ओके, 200 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते। ओके, तो फिर ग्लोबल आ गया, फिर बाहर के L&T वो सब आगे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हम भी लेते हैं, नहीं, तो गवर्नमेंट बोली भाई आप 200 करोड़ तक आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि हम हमारे इंडिजीनियस डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को वी वांटेड टू सपोर्ट देम, सो वी हैव एक्चुअली एलिमिनेटेड सेलेक्टिवली, okay, the global tenders, selectively the global tenders. So that is one of the very beautiful initiative taken by the government, I really loved it. अदर मेजर्स फॉर MSME, तो इनको ई मार्केट लिंकेज देंगे, जस्ट लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट के टाइप्स, उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए वी विल गिव देम ए electronic platform where the you me and can go to that particular website and buy the products whatever we want to buy. Okay, और उनके ट्रेड फेयर्स करेंगे, एग्जीबिशंस लगाएंगे, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। Okay, this all will be, this would help MSME to solve their problems of marketing and लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करा तो उसके पैसे भी आना चाहिए, राइट।
ओके मैं अगर पेंसिल प्रोड्यूस करा तो पैसे भी आना चाहिए, तो ये लिक्विड होना चाहिए ना, ये लिक्विड मीन्स कन्वर्शन ऑफ मनी, कन्वर्शन ऑफ ए थिंग इनटू मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विडिटी। तो इसका लिक्विडिटी चाहिए। अगर घर के पास ही बेचूंगा तो कोई लेंगे नहीं, ई मार्केट अमेजोन पे बेचूंगा तो जल्दी लिक्विड हो जाता, तो लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्शन। ओके आई होप यू गॉट। ओके घर के पास ले भी लेंगे तो कितने लेंगे, तो 4 10 15 20 लोग लेंगे, तो मेरा तो स्टॉक ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी मुझे स्टॉक लिक्विड करना है। इन दैट केस ये ट्रेड फेयर्स रहो, ये एग्जीबिशंस रहो, वहां पे जाके सेल करूंगा, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे ऐसा कोई चैनल करे तो कहीं से भी मेरे प्रोडक्ट्स बाई करेंगे, तो जल्दी जल्दी मेरे पूरे पेंसिल्स लिक्विड होते नहीं होते, यस हो जाते, हो जाना चाहिए। देखो और एक अच्छा बेनिफिट है, इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा आपको, इनकम टैक्स रिफंड्स टू नियरली 8.2 लाख स्मॉल बिजनेसमैन वर्थ 5204 crores has been issued। ओके जो भी इनकम टैक्स पे करे उन पूरों को पैसे वापस दे दी गवर्नमेंट, एंजॉय करो बोल के। ओके सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटी, दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटी। द मेन इंटेंशन वाज टू, ओके अगर समझो मेरी एक यूनिट है, फैक्ट्री है, मुझे पैंडेमिक में उतना फायदा तो हुआ नहीं, तो मैं उतने प्रोडक्ट्स बेचा नहीं। ओके हमेशा 100 प्रोडक्ट्स में बेचता हूँ, 100 आइटम्स में बेचता हूँ, आई कैन इजिली कवर माई रेंट, सैलरी, वेजेस सब कवर हो जाता। अब पैंडेमिक वजह से मैं 50 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सका और वही बेचा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कवर हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे 100 मिनिमम बिका तो ही मुझे फायदा होता, बट 50 ही बिका। सो मेरे पास, और ऊपर से मैं टैक्स भी बनूं, अब ये टैक्स यहाँ पे भी बनूं यहाँ पे भी बनूं, तो अब पैंडेमिक का सिचुएशन, गवर्नमेंट बोली भाई आपके टैक्स हम रिफंड कर देते, आप क्या करो, एम्प्लॉयज के पैसे कम मत करो और एम्प्लॉयज को निकालो नहीं। पैसे कम करने को पे कट्स बोलते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को निकाल दे रहे हैं आप तो उसको ले ऑफ बोलते हैं, डोंट ले ऑफ, डोंट कट द पेस, सो वी आर गिविंग यू द टैक्स रिफंड। नो हम पैसे इनकम टैक्स आपको दे रहे हैं ना वहाँ पे वापस, तो आप वो पैसों से उनको मेंटेन करो जब तक अनलॉकिंग प्रोसेस, जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिवाइव नहीं होता। Okay, so in that way government had the intention, I think you got this point। और थोड़ा ज्यादा क्या दिए, 8th वन, रिलीफ ऑफ 1500 crores टू मुद्रा शिशु लोन्स। ओके मुद्रा एक स्कीम है, इफ यू गो एंड सी इन द मुद्रा स्कीम, उसका एक एडवर्टाइजमेंट भी है, गूगल पे मारो मिल जाता। ओके वी आर हैविंग हियर शिशु किशोर एंड तरुण, शिशु किशोर एंड तरुण, ये जो शिशु लोन है 50,000 तक देते। ओके 50,000 रुपीज ऑफ लोन विल बी गिवन टू यू। सो इसमें छोटा छोटे बिजनेसेस जो भी ओपन करना चाहते, because of pandemic many of them has lost the job, so they wanted to start a new venture of their own, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, पेपर बेचना है या दूध की पैकेट बेचना है या मिल्क बेचना है, कुछ भी करना चाहते, ओके 50,000 रुपये आपको दे सकते। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्राइवेट, और इंटरेस्ट भी बहुत कम में मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन बोले तो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट से कम में मिला तो वी कॉल इट एज सबवेंट, नीचे। ओके स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट से कम में इंटरेस्ट रेट मिला तो वी कॉल इट एज इंटरेस्ट subvention of 2%, okay, to prompt pays for 12 months। okay अगर आप continuously if you are able to pay your EMI on time, so what will happen, आपको इंटरेस्ट कम में गिरता, okay then ease of doing business भी आ गया, ease of doing business for businesses including MSME। the government of India has announced further enhancement, okay, ease of doing business through insolvency and bankruptcy code related measures which include raising of minimum threshold, ये तो हम पढ़ लिए, insolvency proceedings to 1 crore from 1 lakh, okay 1 crore from 1। अगर कोई कंपनी लोन लेके बैंक से पे नहीं कर सक रही, ओके और उसका जो भी डेट है बैंक को देने के, अगर उसके पैसे 1 करोड़ रुपए बाकी है, पहले तो 1 लाख अगर बाकी है तो भी प्रोसीडिंग शुरू हो जाते थे, वो नोटिस भेजना, बैंक वाले नोटिस भेजते थे, आके इंस्पेक्ट करते थे, फिर हम ये ऑक्शन कर देते, वो ऑक्शन कर देते, आप लॉयर को लगाओ, आप ये करो वो करो, ओके अपने को सूट फाइल करना पड़ता था, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ता था MSME के लिए। सो MSME लोन्स देते थे, उसके बाद में ये सब शुरू हो जाता था। सो गवर्नमेंट क्या करिए, अभी 1 लाख रुपीज का अगर प्रॉब्लम रहा बैंक से तो उसको हम इंसॉल्वेंसी नहीं बोलेंगे,
द प्रोसीडिंग्स विल ओनली बी इनिशिएटेड, अगर सूट फाइलिंग फ्रॉम द बैंक, बैंक वाले कब अपने ऊपर सूट फाइल करते, कब अपने ऊपर क्या बोलते सो कोर्ट को कब जाते बोले तो नॉट फ्रॉम 1 लाख, अगर आप 1 करोड़ ओके अगर उनको डेट है 1 करोड़ आप उनके उधार है बैंक के, अगर ये लेवल का आप डेट क्रिएट करें ना तब आपके अगेंस्ट बैंक के प्रोसीडिंग्स होंगे। तो पहले तो 1 लाख था, बहुत छोटा अमाउंट था, तो अभी तो 1 करोड़ तक का है। स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमई, तो इनके केसेस अलग ही डिसाइड होंगे। एमएसएमई रिलेटेड जो भी कंपनीज डेट जो भी कंपनी लोन लेके बैंक को नहीं बन रहे उनके लिए सेपरेट प्रोसीजर ऑफ फ्रेमवर्क इज देयर टू सॉल्व द डिस्प्यूट। सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ insolvency proceedings for up to 1 year depending upon the pandemic situation. So no insolvency proceedings could be initiated by the bank towards any MSME up to 1 year, okay, till the pandemic situation happens, clears off. Okay, very very good criteria, because अभी शुरू हुआ कि अब केस डालना शुरू करे तो फिर रिवाइव कैसा होंगे, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल. Empowering the central government to exclude COVID-19 related debt from the definition of default under the code for the पर्पस ऑफ ट्रिगरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये तो बहुत अच्छा प्रोविजन है. अभी क्या हुआ पैंडेमिक की वजह से, बिकॉज पैंडेमिक तो चला 4-5 महीने, हम तो लॉकडाउन में थे, ये 4 महीने के वजह से कंपनीज, सम कंपनीज आर अनेबल टू पे दी लोन रहो या इंटरेस्ट अमाउंट हो या EMI हो, अनेबल टू पे टू द बैंक. ओके, देन चलो भाई 4 महीने से नहीं बने, आप 1 करोड़ रुपए हो गया, 4 महीने से नहीं बने 1 करोड़ का डेट हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रोविजन है, 1 करोड़ रुपए का डेट होते ही प्रोसीडिंग शुरू हो जाना, right? Court, bank will go to the court and file a case against the company because it is 1 crore rupees of debt create हो गया, because the provision तो ऊपर पड़े अपन. Okay, but government बोली अगर pandemic situation में, okay, on lockdown situation में, if any company creates any debt, okay, if any company creates any debt का 1 करोड़ हो गया तो वो पीरियड हम निकाल दे रहे. कितना अच्छा प्रोविजन है, वो पीरियड हम निकाल दे रहे. Okay, so we are not going to include the period of lockdown and the pandemic affected months. Okay, if the debt is created 1 crore rupees during that particular period, the bank cannot go for any suit, any filing of the suit. Suit का मतलब है legal action लेना. Okay, वो तो कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट करना, उसको बोलते हैं suit. Okay, I hope that you got this. I'll continue tomorrow because I have to leave now. Okay, bye bye. See you. Take care.